Assalamu alaikum and a good evening, everyone. Welcome to Hack the Future 2026 by IEEE Ziauddin University Student Branch. Let's get started. Tonight's topic is getting noticed in tech as a beginner, and we have the perfect person for it. Joining us is Abdullah Ijaz, lead software engineer at Hey OZ. He'll share how beginners can stand out with skills plus projects, build a personal brand, and learn what top engineers do differently in real careers. Abdullah, welcome, and the floor is all yours. Thanks for the introduction. So I'll try to keep this conversation. I'll try to keep this session pretty conversational. I don't have any slide deck prepared. I don't like slide decks. I think they take your attention away from what's being talked about. So I'm gonna keep this very conversational. गपशप लगा के बातचीत करके आप लोगों को सबको बताऊंगा what I did, what I didn't do, and what I wish I could have done. So I'm gonna start with quickly introducing myself. Some of you may already know me. I am currently the CTO of this startup named Hey Oz. It's Hey Oz. So Hey Oz, basically, you can imagine Hey Oz is a platform where we automate the marketing stack of brands using AI. I think that's enough for the introduction for Hey Oz. Before that, I used to work at Motive. Motive is basically a B2B platform for large enterprise companies. And before that, I used to work at Dubizzle Labs. Dono companies are something which are enterprises, MNCs, and Dono, and both are unicorns. Before that, I was just a university student. I was just a university student, like most of you. आपकी तरह ही था मैं. And it's just been only been 2 years since I graduated. So within 2 years, what I've managed to done is मैंने जो चीजें की हैं मुझे खुद भी समझ नहीं आती कैसे हुई हैं और कैसे की हैं. And I've basically a lot of the time I've just YOLO'd things. Everybody, does anyone know what YOLO means here? Just raise your hands. I want to keep this very interactive. I'm going to be asking you guys questions and want to see what you guys think. YOLO का पता है लोगों को क्या, आप लोगों को क्या मतलब होता है? So I'll explain. YOLO is basically I did not have anyone telling me what XYZ things are, so I figured them out on my own. So this is what YOLOing means. So this is what I've done. Okay? When I was in university, so back in my university, I was absolutely not someone who was an extrovert, right? I used to be scared of talking to people. I had a very big stuttering problem. I used to stutter a lot. मेरी बात अटकती थी मुझसे बोलते हुए. And I was really scared of sharing my thoughts with people because I was scared कि लोग मुझे judge करेंगे, ठीक है? I think everybody can have some time in their life experience this जहाँ पर उनके ज़हन में कोई बात होती है and they cannot share it with someone because I mean they feel के कोई judge करेगा उनको. And I was someone जो कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि I would be talking on a platform which I think everybody can agree on is the cringiest platform on the planet. ठीक है? LinkedIn has to be one of the most cringe platforms on the planet because of the way people use it. ठीक है? I could not see myself as someone जो कि ये वाली पोस्टिंग कर रहा है कि excited to announce कि I have done XYZ. मैं ये excited हूँ ये कर लिया वो मार्का मार लिया thrilled to announce XYZ. And this used to be very, and I used to see these posts and I used to be bothered by them कि भाई मैं कैसे करूँगा ये. But I actually gave in. I gave in. I tried doing some of this stuff. मैंने भी लगाई वो वाली पोस्टें एक टाइम पे when I was in university. I used to feel proud कि मैंने भी लगाया है. I used to overthink about this one thing कि यार LinkedIn पर connections होने चाहिए, मेरे 500 connections हो, ये हो वो. So I used to be like most of you guys. मैं भी ये चीजें सोचता था and I used to overthink almost everything. But there was one thing I knew. ठीक है, एक चीज मुझे लाजमी पता थी जिसका मुझे पता था कि भाई ये तो रूल जिंदगी में अप्लाई होता ही होता है. And this is the whole point. The one rule that I'm going to talk about is going to be the whole driver of this conversation, which is जो दिखता है वो बिकता है. ठीक है, what you see is what gets sold. आपका देखो, how many of you are from engineering background here? Just raise your hands. If you guys can do that, raise your hands. And if you guys can open up your cameras, that's also preferable because I'm going to be doing a Q&A at the end of the session. I would like to see the faces of the people I'm talking to. It's
it's more interactive that way. Otherwise मुझे ऐसे बस लोगों के HIAZ नजर आ रहे होंगे and I don't know who I'm talking to, and कोई फील नहीं आएगी भाई सेशन से. So if you guys can please turn your cameras on, let's make this a little more interactive. Right. तो engineering में ना, there is this concept of being cracked. Cracked means कि you are very good at what you do. Or engineering में it's generally programming. But there is this one rule that applies to almost every single field, is that being good or being extremely good does not guarantee you getting noticed. ठीक है, नोटिस विजिबिलिटी का आपकी स्किल के साथ इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है जितना लोग सोचते हैं, राइट? आई नो पीपल जो के प्रोग्रामिंग में चीते होते थे, ठीक है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दे वर स्केर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट देयर थॉट्स on online platforms, and this used to be their biggest bottleneck. Someone who is, let's say, above average, but that same person has visibility, is gonna always beat the person who's cracked at programming or cracked at whatever field they're in. जिस भी डोमेन में वो हैं, अगर वो उसमें चीते हैं, उनको एक दूसरा बंदा जो कि दरमियाना सा है, decent, I'll just use the word decent here, that decent person is gonna beat them at every single time. और उसकी रीजन है, ठीक है, रीजन क्या है? जो दिखता है वो बिकता है. इफ नोबडी नोज यू, इफ नोबडी नोज के आप क्रैक्ड हो, नोबडी नोज के आपने फलाने फलाने मार के मारे हैं, नोबडी नोज के यू आर लेट्स से गोल्ड मेडलिस्ट एट योर यूनिवर्सिटी, नोबडी नोज के आपने फलाने फलाने प्रोजेक्ट्स किए, नोबडी इज गोना रिमेंबर यू, नोबडी केयर्स. ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड एज वेल, नोबडी केयर्स. लोगों को नहीं फर्क पड़ता. People don't care if you're a gold medalist. People don't care if you've scored a perfect CGPA. What matters is कि आप कौन से आइडियाज ऐसे लेकर आ रहे हो जिससे लोगों को फर्क पड़ता है. ठीक है, उस पर मैं आता हूँ. ठीक है, विद द बूम ऑफ एआई, ठीक है, एआई का ऑलमोस्ट आई थिंक हर बंदा ही अवेयर है. Getting good at your domain has become relatively easy. ठीक है, I know a lot of you people who do your university assignments, देखो सब AI यूज करते हैं. I'm sure pretty much all of you are gonna be writing essays with ChatGPT या Claude, और plagiarism के आप लोग मसले solve करते थे. I used to be one of those people कि भाई pledge आ गया, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ ऐसे. But point being के with AI things have become so easy, and one of those things are code. Coding has become sadly a commodity with the rise of AI. There are models so good out there right now that आपको जो चीजें नहीं भी आती ना, they can just do it for you. ठीक है, so coding has sadly become a commodity, and because it has become a commodity, everybody is doing something with AI, and they're just generating a lot of code. So everybody is building projects with AI. Everybody is talking about, everybody is thinking about things with AI. सब लोग ना एआई के साथ काम करें. सो द प्रीवियसली जो बार होता था ना, विच यूज टू काइंड ऑफ गेट यू हायर्ड और गेट यू नोटिस, हैज ड्रामेटिकली बिन इंक्रीज्ड. ठीक है, ड्रामेटिकली वो इंक्रीज हो गया. और उसकी रीजन यही है कि when something is so simple to do, there is a probabilistic chance कि ज्यादातर लोग वो करेंगे. ठीक है, and people do it. ठीक है, अब this is one of the reasons I am gonna talk about भाई जो दिखता है वो दिखता है वाली बात कि अब because everybody is doing all these things with AI, there is one single problem जो कि AI कभी भी fix नहीं कर पाएगा. That is visibility. आप जो मर्जी बिल्ड कर लो, आपके कोलीग्स, आपके क्लासमेट्स, कोई भी बिल्ड जो मर्जी कर लें, बात तो एंड पे वही रह जाती है कि भाई आपने बना ली चीज, who knows about it? Have you talked to people who actually care about those things? Are you in a place where that thing that you've built is something that they will care about? ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, and AI is not going to solve that for you, and it's not going to do that for the next 5-10 years. 5-10 साल में भी ये चीज नहीं होने लगी, because visibility is something you do yourself. ये आप खुद करते हो, कोई आपके लिए करके नहीं देता. अब अगेन वापस आते हैं टॉपिक पे. ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, बट दिखेंगे कैसे? हाउ डू यू गेट नोटिस्ड? एंड बिफोर आई गेट इनटू दैट, आई वांट यू गाइस टू इमेजिन एक पहिया है, ठीक है, एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, एंड आप लोगों के दो काम है. नोट विजिबिलिटी के ना दो पिलर्स हैं. देयर इज द पिलर जहां पर आपने वो जो व्हील है ना, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट दैट व्हील.
And the second pillar is you need to make sure that wheel keeps rotating. आपकी जैसे चक्की घूमती है ना, उसी तरह आपकी जिंदगी का विजिबिलिटी का फैक्टर भी घूमता रहना चाहिए, अदरवाइज फायदा ही नहीं है विजिबिलिटी का, ठीक है। और वो मैं उसमें जाता हूँ हमने कैसे करना। सो in order for you to get noticed, the first thing you need to do is you need to be in a place where everybody can see you, ठीक है। लोगों को कैसे पता चलेगा आप कहीं एग्जिस्ट करते हो अगर आप कोई लोग ही नहीं है वहां पे, ठीक है। दैट्स द नंबर वन प्लेस फॉर दैट in your professional life is LinkedIn. Sadly, the cringiest platform on earth is the one place that you need to be in. लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। So once you're in a place like that, the first thing that you're gonna do is I'm gonna lay it on a very high level firstly, and then मैं उसको break down करूंगा थोड़ा थोड़ा करके. So the next thing you're gonna do is once you're in a place where everybody can see you publicly, वहां पर आपने चीजों के बारे में बात करनी. You're gonna talk about things who attract talk about things that are gonna attract people who you care about, ठीक है। जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, उन लोगों को जिन चीजों से फर्क पड़ता है, you're gonna be talking about those things. And sounds very simple, but simple does not mean easy at all, ठीक है। सिंपल का बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है कि चीज कोई भी easy होगी। So once you're in a place where everybody can see you, you're going to be talking about things, and you're going to be doing that consistently. अब consistency एक word है, people often misinterpret it. लोगों को लगता है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि ना मैंने हर रोज हर घंटे हर दिन कोई ना बात करनी है, मैंने कोई पोस्ट करनी है लिंक्डइन पे, मैंने कोई किसी चीज के बारे में उधर बोलना है, क्या कर। कंसिस्टेंसी एब्सोल्युटली डज नॉट मीन डूइंग इट एट फिक्स्ड इंटरवल्स. what I've just described, regularly daily करना, it's doing something at fixed intervals. Consistency का मतलब ये है कि once you've started doing something, you just keep doing it. आप करते रहो, ब्रेक ना लो उसमें। ब्रेक का मतलब हो सकता है इस केस में कि आपने बस एक दफा की और छोड़ दी फॉर 1 2 3 years. कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, एंड जिस केस में अभी हम बात करेंगे वो होगी विजिबिलिटी के लिए चीजें करना, वो यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली। अब उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि वो चीजें क्या हैं। एंड बाय द टाइम यू आर डन विद दिस सेशन, आई एम गोना गारंटी यू कि आपको जो जहन में, मोस्ट ऑफ यू गाइज जिनके जहन में ये चीज चल रही है कि भाई मैंने बात क्या करनी है लिंक्डइन पे, दिस गाय इज सेइंग XYZ थिंग्स, मैं कुछ भी बता रहा हूँ आके मैं बोल रहा हूँ ये चीज करनी है वो चीज, बट करनी क्या मैंने चीज है, मैंने किस चीज के बारे में बात करनी है, क्या चीज मैटर करती है, बिकॉज उस चीज की भी मैं आपको रीजन देता हूँ। आई यूज टू बी like you guys, and I used to be a job hunter. मैं भी भाई jobs ढूंढता था एक time पे. I used to be crazy about getting noticed and used to be crazy about getting my first job. Since I am at a place where I do the hiring now, since I hire engineers now, I'm currently actually looking for one. तो एक चीज which I've understood is आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो ना, that needs to be the thing जो उन लोगों को अट्रैक्ट करे जिनको फर्क पड़ता है उन चीजों से। अगेन मैंने वही पॉइंट रीआइट्रेट किया, और अब मैं उन चीजों के बारे में बात करता हूँ, वो चीजें क्या होने वाली हैं। सो if you're someone who is in the engineering domain, I'm gonna be sticking to engineering precisely for now. मैं marketing के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, I'm not a marketing guy, but जो मैं principles आप लोगों को बता रहा हूँ, they apply to every single domain. So what do you actually talk about? Basically anything that's worth sharing. Sound so simple, right? अब वो worth sharing चीजें क्या हो सकती हैं, and I'll explain all this stuff with examples. Suppose you're someone जिसने बड़ा मार्का मारा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, and they managed to get into Google Summer of Code. Do you guys know what Google Summer of Code is? Just raise your hands. I don't see any hands. Okay, one guy knows it. So basically, Google Summer of Code is a platform जो कि Google itself host करता होता है, where you contribute to open source projects, ठीक है। Fancy name, Google का नाम आ गया, Google Summer of Code आ गया। When you have things like these, similarly जैसे Motive का नाम आ गया, Dubizzle Labs का नाम आ गया, companies, बड़ी companies के नाम आ गए। Once you have these tags linked to your name, your credibility automatically gets increased. और उसकी रीजन ये है कि जो इन
टाइटल्स को साथ जोड़ने का प्रोसेस होता है ना, इट्स टफ. अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाई फॉर इट, but very few people actually manage to get these positions and get these titles. So पहली चीज तो ये है, if you have a tag, by abuse that tag. And how do you abuse that tag? Main principle यही है, you're gonna be talking about things. And once you start talking about things and लोग आपकी चीजों को पढ़ते हैं और आपके नाम के साथ कोई स्पेशल टैग लगा होगा, they will automatically consider कि आप एक बेहतर credible बंदे हो, because you have done your homework, you've done your work to get into a certain position, so you actually know what you're talking about. तो ये तो एक केस हो गया. सब समर ऑफ कोड में नहीं जाते, मैं कभी नहीं जा पाया, मैंने तो एक दफा अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया. No, not everyone can get into those things. तो फिर क्या चीजें रह गई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो फाइनल ईयर के नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के होते हैं, द बेस्ट थिंग दीज गाइस कैन टॉक अबाउट इज आपका वॉलंटियर वर्क. विच कॉम्पिटिशंस डू यू टेक अ पार्ट, हैव यू टेकन अ पार्ट ऑफ? हाउ मेनी एग्जीबिशंस हैव यू डन? एग्जीबिशन कुछ भी हो सकती है, आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया, आपने कहीं पे जाके उसको शोकेस किया, आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया ड्यूरिंग योर इनिशियल ईयर्स, आपने कोई ऐसा भंड मार दिया यूनिवर्सिटी में, दैट इज वर्थ टॉकिंग अबाउट, दैट्स योर लॉस. एंड लॉसेस कैन ऑल्सो बी टॉक्ड अबाउट. ठीक है, नॉट एवरी वन इज परफेक्ट. रिमेंबर, आप अपनी गलतियां भी शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे, दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई वुड नॉट वांट एनीवन एल्स टू डू इट. तो आप वो लॉसेस भी शेयर कर सकते हो. मोस्ट इम्पोर्टेंटली what you guys are going to talk about when you actually start when you want to start on a journey जहां पर आपने visibility अपनी increase करनी, you're going to be talking about anything that you have done in your university or before your university. वो चीजें, अगेन वो चीजें जिनके बारे में बात करके दूसरों को थोड़ा फर्क पड़ेगा. लेकिन एक प्रिंसिपल आपने याद रखना, nobody cares. So you need to not only talk about things, you need to talk about them in a certain way. और उसके ऊपर हम बाद में आते हैं वो certain way क्या होता है. तो फर्स्ट चीज इज आपके नाम के साथ टैग है, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट. दूसरी चीज ये कि वंस यू हैव थिंग्स दैट you can talk about which can be your competition की participations. If you won a competition such as, I don't know, softtech है, पाकिस्तान में softtech होता है, NASCON होता है, इस तरह के competitions हैं, प्रोग्रामिंग competition में आपने किसी में पार्ट लिया है and you've actually managed to win that competition, आपने कुछ उसमें उखाड़ा है, just talk about it. अपनी विन को शेयर करो, शिल करो अपने आप को. इसके बाद चीज आती है on LinkedIn. Once you start getting on the journey, you're going to be talking about everything that you're doing. ठीक है, and the one primary thing you'll do is you're going to be building in public. ठीक है, building in public का क्या मतलब होता है? So building in public is a thing जिसमें अगर आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो ना, this चीज can be a simple project, this cheese can be your final year project, this cheese can be a startup that you're building. Talk about it on LinkedIn. ठीक है, इसके बारे में लोगों को बताओ कि this is what I'm doing. And the one thing that you have to keep, the another thing you have to keep in mind कि oftentimes people think कि भाई मैं पोस्ट तो कर रहा हूँ बट कोई देख नहीं रहा उसको. भाई forget about this thing. forget अब इस चीज को पकड़ना है और जेन से आपने निकाल देना है, बिकॉज पीपल सी योर पोस्ट. मैं देखता हूँ सबकी, मैं लोग मेरी देखते हैं, बट रिमेंबर नॉट एवरीबडी इज गोना इंटरैक्ट विद योर पोस्ट. और वो इंटरैक्ट कैसे करवाना है लोगों से, वो एक बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन है. आई मीन वी कैन मे बी इन द फ्यूचर हैव अनदर सेशन ऑन इट, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग थ्योरी है. बट रिमेंबर, आपने जो भी बात की है ना लिंक्डइन पे, कोई ना कोई तो देखेगा उसको. ठीक है, तो वो आपका जो फर्स्ट पिलर है ना, गेटिंग नोटिस वाला, वो तो हर टाइम whenever you start talking about your things, वो कहीं ना कहीं आपका स्टार्ट हो जाता है. तो people do notice, people will see whatever you're posting on LinkedIn. एक और चीज आती है कि, और ये मेरे ज़हन में बहुत आता था कि मैं क्यों पोस्ट करूं, मेरे पास तो कोई बात करने के लिए चीज ही नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ. हाउ मेनी ऑफ यू हेयर एक्चुअली फील दैट? कितने लोगों को लगता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास तो कोई बात करने के लिए चीज ही नहीं है? आई यूज टू थिंक दैट, बाय द वे. मेरे पास कोई आइडियाज नहीं होते थे. आई यूज टू थिंक भाई मैं तो, आई मीन देयर आर पीपल, भाई वो गूगल में गया हुआ है, फलाना उधर गया हुआ है, टिमकाना उधर गया हुआ है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर. बट टर्न्स आउट यू नीड टू एक्चुअली नो योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है, आपको अपने बारे में थोड़ी जानने की जरूरत होती है पहले, कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी क्या चीजें की हुई हैं
जिससे दूसरों को शायद थोड़ा सा ही फर्क पड़ जाए, थोड़ा सा ही पड़ जाए फर्क. And just talk about those things. Do not ever think you're not good enough, because at some point you are, right? So वो जो डे होता है ना आपके जेहन में कि यार मैं उस दिन पोस्ट करूंगा, द डे इन विच आई एम गुड इनफ, उस दिन जिस दिन मैं सारी चीजें अचीव कर लूंगा, जब मेरे पास चीजें होंगी बात करने के लिए, उस दिन पोस्ट करूंगा. forget about that day. That day is imaginary. कभी भी नहीं वो दिन आता होता, because when you grow up, as you grow up, you tend to realize कि आपने जो चीजें already कर ली हैं, you still need to do a lot of other things as well. So you get into this constant loop कि I am not good enough because अभी मैंने XYZ चीजें नहीं की हैं. You're gonna be stuck in that. So just take that thought out of your head. जो भी बात है उसके बारे में पोस्ट करो. सबसे पहली चीज है विजिबिलिटी गेन करने की ऑन लिंक्डइन इज पोस्ट अबाउट थिंग्स. ठीक है, पोस्टिंग ना अक्सर लोगों को डिफिकल्ट लगती होती है, मुझे बहुत लगती थी. उसका पोस्टिंग से पहले एक दूसरी चीज भी लोग कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी आसान है, एंड नोबडी टीचेस दिस बाय द वे. और ये एक बड़ी हिडन ट्रिक है लिंक्डइन की टू गेट मोर विजिबल. अब पोस्ट करने से भी ज्यादा अगर आपने विजिबिलिटी गेन करनी है ना, तो देयर इज अनदर थिंग यू कैन डू ऑन लिंक्डइन, दैट इज कमेंट्स. So I'll explain why. When you post on LinkedIn, let's say आपने LinkedIn पे एक दिन में एक पोस्ट की, वो पोस्ट दिन में एक बंदे की फीड में एक ही दफा आएगी, बार बार नहीं आएगी. तो एक दिन में एक ही पोस्ट एक बंदे की फीड में एक ही दफा आती है, बार बार नहीं आती, बिकॉज आई ऑलरेडी सीन इट. कमेंट्स हाउएवर कमेंट्स हाउएवर आर अ थिंग कि आपने जितने लोगों की प्रोफाइल पे या जितने लोगों की पोस्टों पे जाके कमेंट किए होंगे, they will be shown to your followers or your connections. अब comments की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? अब these comments are gonna be things that are gonna make you look like a credible person or a thought leader or someone that can be listened to. Comments ये नहीं होने चाहिए thanks for sharing, very well thought out post, amazing work, excited, congratulations. These are meaningless comments. ठीक है, इनको पकड़ना और फेंक देना. Do not even consider them as valid comments. Comments are something, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मैंने कोई अपनी थॉट शेयर किया, ये जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई गेटिंग नोटिस की बात की, मैंने जो दिखता है वो बिकता के बारे में बात की. A comment can be someone actually opposing my idea. वो कह रहा है कि भाई जो तुम बोल रहे हो वो गलत है. ठीक है, दिस इज अ कॉन्वर्सेशनल कॉमेंट. ये एक आप थॉट अपनी जाहिर कर रहे हो, या आप एग्री कर रहे हो उससे और उसके ऊपर अपना पॉइंट दे रहे हो, या आप डिसएग्री कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कोई पॉइंट दे रहे हो. ठीक है, तो इट हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशनल कॉमेंट जिसकी कोई सेंस बनती है, जो कि दूसरा बंदा पढ़े तो उसको आइडिया हो कि यार बात तो इस बंदे ने ठीक की है, या तो यानी जो ये बात कर रहा है इसको इसके बारे में पता है. An example of it would be, let's say someone says there is a very famous programming language called JavaScript. कोई बंदा पोस्ट करता है कि सर्वर्स शुड बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट, और उसके ऊपर वो पूरी तमहीद बांध देते हैं कि जो हमारे पास इंजीनियरिंग में बैकएंड में सर्वर्स होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट में लिखे जाने चाहिए. ठीक है, और if you think that's a bad idea, let's say मैं कहता हूँ ये this is a terrible idea, JavaScript is a language जो कि सर्वर पे नहीं यूज करनी चाहिए, I would actually go into the comments of that person. मैं पहले देखूंगा लोगों ने और क्या कमेंट किया हुआ है, then I'll share my thoughts कि भाई I disagree with you, I think तुम बोंगी मार रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो. JavaScript is a terrible language for a server, this is why. अब इमेजिन आपने ये कमेंट कर दिया है, आपकी फॉलोइंग में, आपकी कनेक्शंस में 1,500 लोग हैं. 1,500 के 1,500 लोग जब अपना लिंक्डइन खोलेंगे वो आपका कमेंट देखेंगे. छोटी सी विजिबिलिटी मिल गई, ये एक कमेंट है. दिन में 10 कमेंट्स कर लो, वो 10 दफा आपका नाम देखेंगे. जब एक बंदा दिन में 10 दफा आपका नाम देख रहा है और वो नाम आपका कंसिस्टेंटली देख रहा है ओवर अ मंथ, कैसे हो सकता है वो आपको याद नहीं रखेगा? एंड दिस इज अगेन, आप पहिया बना रहे हो. ठीक है, पहले पहिया बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, तो अगेन कमेंट्स करो, कमेंट एज मच एज पॉसिबल और मीनिंगफुल कमेंट्स करो. तीसरी चीज आती है गेटिंग नोटिस में. वंस यू हैव स्टार्टेड पोस्टिंग, वंस यू हैव स्टार्टेड कमेंटिंग, मेन गोल हर बंदे का, आई एम अज्यूमिंग, यही होता है कि यार मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे कोई ऐसा बंदा नोटिस कर ले जो मुझे अपने पास काम पे रख ले, या मैं ऐसे बंदे के साथ अपना कनेक्शन बना लूं
who I can work with to build something of my own. मैं अपना कोई स्टार्टअप उसके साथ खोलूं. तो you want you everybody has a target audience in their mind कि मैंने यार इन लोगों के साथ ही राब्ता रखना है. और वो ज्यादातर यही होते हैं कि आपको जॉब अच्छी चाहिए, आपको किसी फाउंडर के साथ कनेक्ट करना है, आपने किसी रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करना है. ठीक है, तो वंस यू डू योर पोस्टिंग और ये कमेंटिंग वाली चीज, इवेंचुअली पीपल स्टार्ट एंडिंग अप इन योर अकाउंट. ठीक है, वो आपके अकाउंट को देखेंगे. इसके बाद जो स्टेप आता है इन एक्चुअली गेटिंग टू द जॉब्स दैट यू वांना गो इनटू, आपने अपनी विजिबिलिटी बना ली. ठीक है, शुरू में ऑब्वियसली पीपल आर नॉट गोना गो एंड कम इनटू योर डीएम्स और गोना सोने की प्लेट में आपको कोई जॉब ऑफर नहीं करेगा शुरू में, बिकॉज दे डोंट नो यू. ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता होता है. तो व्हाइल यू आर डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, जॉब्स को गेट करने का ना, द वन थिंग दैट आई फिगर्ड आउट इज, अप्लाई करने से ना इतना कोई फायदा नहीं होता. You can mass apply to thousands of posts, thousands of openings. इतना फायदा नहीं होता, and especially for fresh grad और स्टार्टअप वाले रोल्स, स्पेशली बल्कि फॉर स्टार्टअप वाले रोल्स. व्हाट मैटर्स इज कि आपने पोस्ट देख ली कोई हायरिंग वाली, आपने कोई लिंक्डइन पर देख लिया कि भाई एक फलाना स्टार्टअप है, वो किसी पोजीशन के लिए हायर कर रहा है. एंड लिसन टू दिस केयरफुली. व्हाट यू कैन डू इज, आपने उस बंदे की पोस्ट पढ़ी, स्टार्टअप वाली, रिक्रूटिंग वाली. You go to the LinkedIn's of the decision makers of that company. Decision maker can be your recruiter, the CEO, the CTO. उनकी किसी तरह ईमेल निकलवाओ. There are several thousands of tool online जो कि ना आपको ईमेल दे देते होते हैं. भाई ईमेल कर दो उनको. And don't email them, hi अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुहाफिज दीन है, मैं ये काम करता हूँ, मैंने वो फलाने मार्के मारे हुए हैं. They don't care about that. भाई मुझे emails आती हैं ऐसी, I don't read those emails because मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने यूनिवर्सिटी में क्या किया हुआ है. बिकॉज आई गेट ईमेल्स लाइक दिस, मेरे पे हजारों इस तरह की ईमेल्स आती हैं. यू नीड टू रियली स्पेसिफिकली टॉक अबाउट थिंग्स इन दैट ईमेल जो उस स्टार्टअप की इन्वायरमेंट के साथ या स्टार्टअप की प्रोडक्ट के साथ या स्टार्टअप में जिस बंदे को आप मैसेज कर रहे हो उसके इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रही हो. ठीक है, I'll give you an example, and I'll actually give you an example of a person who reached out to me. I recently posted on my LinkedIn, एक मैंने GTM engineer hire करना था. GTM engineer, you guys can imagine के एक मार्केटिंग का बंदा होता है जिसको कोड करना भी आता होता है. ठीक है, क्रक्स ये. One of the persons that really, got my attention was someone who emailed me. The headline of their email was the GTM engineer you are looking for. दिस वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल. आई मीन मेरे पास वैसी ईमेल नहीं आती, मेरे पास ईमेल आती है एप्लीकेशन फलाना रेफरल फलाना. भाई मुझे पता चल जाता है कि ये तो एप्लीकेशन है. देयर सब्जेक्ट वाज सो इंटरेस्टिंग कि अच्छा यार ये ऐसा कौन बंदा है जो इस तरह सब्जेक्ट कर रहा है. इट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड मी टू एक्चुअली रीड देयर ईमेल. उन्होंने ईमेल में एक्चुअली वो वाली बातें लिखी थी. आई केयर्ड अबाउट द रिजल्ट्स दे ब्रॉट. एंड अगेन ये पोस्ट टू पोस्ट, पोजीशन टू पोजीशन, जॉब टू जॉब वेरी करती है चीज. बट दे टॉक्ड अबाउट द थिंग्स आई केयर अबाउट, the things I'm looking for. उन्होंने उन चीजों के बारे में बात की in a very non-conventional way. That is what got my attention and I got them an interview at our company. Interview उनका हो गया. अब खैर वो उस चीज में नहीं जाते कि उनके इंटरव्यू में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहे हैं. बट the one thing that can actually get you to an interview is emails and DMs. emails कर लिया, emails तो फ्री हैं लिटरली. DMs के लिए लिंक्डइन आपको वो बेचता होता है अपना प्रीमियम वाला प्लान के ये वाला ले लो, उसको DM कर सकोगे. emails are free. You can email almost anyone. आप जाके इलॉन मस्क को ईमेल कर सकते हो उसकी ईमेल निकाल के, एंड हो सकता है ईमेल वो आपकी पढ़ ले. बिकॉज ईमेल्स आर समथिंग कि हर बंदे के पास अपने फोन में जीमेल आउटलुक वगैरह लॉग इन होता है, और जो उनको ईमेल आती है वो किसी ना किसी पॉइंट पर पढ़ते ही पढ़ते हैं. हमें भाई दराज से हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, उसकी 4-5 दफा ईमेल आ जाती है, हमें वो पढ़नी पड़ जाती है. इमेजिन करो कोई बंदा हु इज इन अ पोजीशन, हु इज इन अ प्लेस वेयर यू वांट टू बी, वो वहां पर है, वो अपनी ईमेल्स नहीं पढ़ेगा. तो ईमेल्स आर एज अ वेरी, से कहते हैं ना, एक्सीलेंट वे टू रीच आउट टू पीपल यू वांट रीच आउट टू. खैर ये तो वो बात होगी कि आपने अपनी विजिबिलिटी का पहिया लिया. You started talking about things that other people care about. You started commenting. ठीक है. And the third thing is once you do that, you started reaching out to people. This will make sure if you do it right, आप लोगों तक पहुंचना शुरू कर दोगे. ठीक है, लोगों तक पहुंचना शुरू कर दोगे. एंड इवेंचुअली वंस यू डू इट कंसिस्टेंटली इनफ, लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा. एंड आई हैव अ वेरी एक्सीलेंट केस स्टडी ऑफ अ पर्सन, खैर मैं नाम शेयर नहीं कर सकता उनका.
I used to do these one-on-one sessions, I think एक डेढ़ साल पहले, and they actually booked a session with me, and whatever things that I'm sharing today, I shared similar things with them, and actually, and उन्होंने उन चीज़ों को follow करना शुरू कर दिया. They've actually grown a bigger account than mine. They were more consistent than me. उन्होंने वही चीज़ें की जो मैंने उनको बताई करने की. Their account has grown beyond my own account. ठीक है? The things that I'm gonna come to questions at the end of the session. सबके questions लूंगा, और questions की एक again शर्त होगी कि जो भी question कर रहा है वो अपना कैमरा खोल के करेगा question. But I'm gonna come to questions. Please keep your questions noted down ताकि भूल ना जाओ आप लोग. I'm gonna be answering all of them. तो खैर ये सारी चीजें करके you at least start getting visibility. आप लोगों को आपके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है. The second thing is visibility का जो काम है ना, और opportunities तक पहुंचने का जो लेट्स से तरीका है, इट्स नॉट जस्ट पोस्टिंग और अपने बारे में बातें करना. द वेरी क्रिटिकल थिंग अबाउट visibility is once you get into positions that you wanted to get into, आप एक दफा once you're in, you wanna keep getting noticed once you're in. Let's say मैंने बड़ी मुश्किल से गूगल में अप्लाई किया और मैंने अपने सारे मार्के शार के मारे और मेरा गूगल में हो गया. ठीक है, नाउ आई एम इन गूगल. ज्यादातर लोग इसके बाद हाथ उठा लेंगे कि बस भाई मेरा तो काम हो गया, मुझे यहाँ पर जाना था, मेरी जिंदगी अब सेट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं. दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ योर फ्लाई व्हील. आपने पहिया बना दिया. पहिए का काम बस एक सर्कल की शेप में खड़े रहना नहीं होता, उसका मकसद होता है घूमना. तो वो पहिया अब आपने घुमाना है अपने लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. और उसका उसका ना बहुत एक सिंपल तरीका है. वो ये है कि वंस यूर इन द जॉब, एक आप जॉब में चले गए हो, आप एक एक नौकरी जो आपने करनी थी वो आपने करनी थी, वो आप उसमें पहुंच गए हो. यू नीड टू डू सर्टेन थिंग्स जो आपको आपकी जॉब में स्टैंड आउट करवाएंगी. ठीक है, वो स्टैंड आउट आप अगेन जो आप वो चीजें जो आपको स्टैंड आउट करवा रही है उनके बारे में आप अगेन अपने लिंक्डइन पर बात कर सकते हो. उन चीजों के बारे में आप बात करोगे, आपको और विजिबिलिटी मिलेगी. आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, एंड रिपीट आपका पहिया हल्का हल्का घूमना शुरू हो जाएगा. अब I have a question for you guys. How many of you do part-time jobs? I'm assuming a lot of you guys are university students. So, as does anyone do part-time jobs here? Okay. We have Sharoon here. So, Sharoon, once or this is by the way a general question. आप में से कितने लोग हैं कि जॉब में जब पर भी आप एज एन इंजीनियर या जो भी आप जिस पोजीशन में भी आप काम कर रहे हैं, वो आपको जो काम पकड़ाते हैं आप वो करके वेले होते हो, एंड देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट टास्क. ऐसे लूप में कौन कौन इसमें फंसा हुआ है कि आपको जो टास्क मिल रहा है आप वो टास्क कर रहे हो? डज एनीबडी फेस दिस थिंग कि आपको जो काम मिल रहा है आप वो काम कर रहे हो, बस डिलीवर कर रहे हो, एंड देन यू आर इन अ लूप के फिर आपको अगला मिल रहा है फिर आप वो कर रहे हो? एक्चुअली दिस इज अ वेरी विशियस साइकिल दैट जूनियर्स गेट स्टक इन. कि आपको जो काम मिल रहा है आप बस वो कर रहे हो, फिर आप इंतजार करते हो अब मुझे अगला काम मिल जाए, मैं वो काम कर लूंगा. यू रिपीट द प्रोसेस. आई कॉल दिस द जूनियर ट्रैप. ठीक है, यू बिकम अ टास्क डूइंग मशीन. ठीक है, आप एक रिलायबल टास्क डूअर बन जाते हो. और जूनियर जो इस चीज में फंस जाता है ना, वो बड़ी देर तक इस चीज में फंसा रहता है. ठीक है, और इसका इसका नुकसान ये होता है कि इफ यू आर अ टास्क डूअर यू बिकम फॉरगेटेबल. फॉरगेटेबल जब आप एक दफा हो जाते हो ना कंपनी में, एक पॉइंट पे आप हो जाते हो, तो दोबारा आप विजिबिलिटी के फैक्टर में आना आपके लिए इंतहाई डिफिकल्ट हो जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस बिकॉज a lot of you guys have not gotten into a full time job yet. आप यूनिवर्सिटी में होगे एंड you're gonna eventually get into full time job जहाँ पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, आप अपना काम कर रहे होगे. तो don't just be a task doing machine. जब आप एक्चुअली फुल टाइम जॉब्स में जाते हो ना, यू ज्वाइन एज अ जूनियर. ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है. यू ज्वाइन एज अ जूनियर, आपके ऊपर एक मैनेजर होता है आपका. दे आर द वन हु आर दे आर द वन हुज गोना गिव यू योर टास्क. ठीक है, वो उन्होंने आपको आपके टास्क देने हैं. ठीक है ना, आपने वो टास्क करने हैं. द वन थिंग यू वांट प्रायोरिटाइज इज दैट यू नीड टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ योर मैनेजर. आपने अपने मैनेजर का ट्रस्ट गेन करना है. ट्रस्ट कैसे गेन करना है? बाय बीइंग एन एक्सेप्शनल कैंडिडेट. काम ऐसा करो, बाय द वे ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, यू नीड टू बी अ above average person. ठीक है, you can't just be doing very half decent half baked things and expect results. You need to be on your toes and you need to be the best at what you're doing in order to be where you want to be in the future.
तो आपने अपने मैनेजर का ट्रस्ट कैसे गेन करना है? बाय रिलायबली डूइंग द थिंग्स दैट यू हैव बीन टास्क्ड टू डू, बट ऑल्सो शोइंग द केपेबिलिटी दैट यू कैन डू मोर। और वो कैपेबिलिटी आप कैसे दिखाते हो? बाय डूइंग थिंग्स, बाय गोइंग आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर रोल। आप एक जूनियर हायर हुए हो, ठीक है, आपको छोटे मोटे टास्क पकड़ाए जा रहे हैं, आप वो बस काम करी जा रहे हो। you're not gonna get opportunities उसके इसके साथ। you need to be doing things जो कि आपके सीनियर्स कर रहे हैं, जो आपका लीड कर रहे हैं, वो वाली चीजें जो आपके एक लेवल ऊपर वाला बंदा कर रहा है, यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स। जब आप ये चीजें करनी शुरू करते हो ना, आपके इंजीनियर का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि ओ यार, दिस बंदा इज क्वाइट गुड एट दिस स्टफ, आई मीन आई कैन ट्रस्ट दिस। वंस योर मैनेजर या जो भी आपका लीड है, मस्ट दे सेंस दैट दे कैन ट्रस्ट यू, once they sense that you're a reliable person, they are gonna give you higher impact projects, वो वाले projects जो आपके same level वाले लोग नहीं कर रहे होंगे। You might be offered to do a project जिसमें आप lead होगे, ठीक है, आपके peers वो काम नहीं कर रहे होंगे। So once you get those opportunities, they are the perfect thing that you can again talk about on your LinkedIn। आपने trust gain किया, आपने अपनी skills दिखाई, you showed reliability, you showed your skill set, इन रिटर्न आपका उसका आपका रिटर्न में क्या मिला? आपको ज्यादा काम मिला। वो ज्यादा काम, लेकिन जो आपको मिला, दैट हैड मोर विजिबिलिटी। और वो विजिबिलिटी विल इवेंचुअली गेट यू टू डू थिंग्स जो कि उससे भी ऊपर लेवल के होंगे। अब जब मैं बोल रहा हूँ हायर विजिबिलिटी, बड़े लेवल के काम, अक्सर इस तरह के काम होते हैं जहां पर जब आप किसी सीनियर का काम कर रहे होगे ना, तो जब वो काम प्रेजेंट करने की बारी आएगी, यू आर गोना बी आल्सो बी सराउंडेड बाय इंजीनियर्स जो कि आपसे एक लेवल ऊपर हैं या उससे भी एक लेवल ऊपर हैं। तो नेचुरली विद इन द कंपनी यूर इन, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग आप पे मजीद ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपका लीड करता है, उसका हो सकता है लीड आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। तो यू गेट दिस पहिया मूविंग, आपका पहिया थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू हो जाता है कि आपने अपने लीड का ट्रस्ट बिल्ड किया, उसको काम दिया, उसके लीड ने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, उसने आपको काम देना शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली वंस यू स्पेंड इनफ टाइम इन द डोमेन, आपकी एक्सपर्टीज और बिल्ड होती रहती है। आपके पास एक बड़ा आर्सेनल बिल्ड हो जाता है ऑफ एक्सेप्शनल थिंग्स यू हैव डन एट द कंपनी। रिमेंबर, एक बंदे ने, जिस तरह के हम लोग हैं आजकल, जिस तरह की हमारी जनरेशन है, we're not the kind of generation who's going to spend 20 years in a single company। ठीक है, 20 साल एक कंपनी में गुजारने वाली हमारी जनरेशन नहीं है सैडली। तो you need to always think about कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो, they will eventually land on your resume। और ये रेज्यूमे किधर जानी है? फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को। दिस इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हील। आपने पहिया घुमाया, वो पहिया घूम के जो उसके रिजल्ट्स है वो आपके रेज्यूमे पे जाएगा, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो आपके लिंक्डइन पे जाएंगी, वो इकट्ठा फिर सारा अगले एम्प्लॉयर को जाएगा। अब आई एज अ एम्प्लॉयर, जिस बंदे ने ये सारे काम किए हुए हैं, सपोज यू आर थिंकिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव में, फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर एन इंजीनियर, आई एम नॉट लुकिंग फॉर समवन जिसने सिर्फ एक चौका मारा है अपने यूनिवर्सिटी में, दे हैव दे हैव अ गोल्ड मेडल, बट उनकी उनकी पास्ट हिस्ट्री में मैं कुछ भी नहीं देख सकता कि उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने विजिबिलिटी के लिए क्या किया, उन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में काम किए हैं, क्या वो एक्सेसिबल हैं, क्या मैं उनमें से किसी चीज को देख सकता हूँ? इज देयर एनी प्रूफ ऑफ वर्क? अगर तो मैं देख सकता हूँ, if that is visible, I'm obviously gonna be inclined towards hiring them versus someone जो कि जिसने मुझे एमी अपने मेरे मैंने जो फॉर्म पोस्ट किया उसने उसमें उस पे बस एक एप्लीकेशन डाल दी। इफ यू आर समवन हु इज हायरिंग, मैं फ्लिप कर देता हूँ सिचुएशन आप लोगों पे। इफ एग्जांपल अभी शरून ने हैंड रेज किया, फॉर एग्जांपल शरून हैज अ स्टार्टअप एंड शरून इज हायरिंग फॉर स्टार्टअप। सपोज करो शरून के पास $5 million आ गए कहीं से, एंड नाउ ही इज हायरिंग फॉर स्टार्टअप, उसने इंजीनियर्स हायर करने हैं, उसके पास 5,000 इंजीनियर्स हैं पिक करने के लिए, उसने हायर दो करने हैं। अब वो दो कैसे चूज करेगा? दो चूज करने के लिए ही नीड्स टू लुक एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ढूंढने में शरून कितनी ज्यादा रेजुमेस देख लेगा, किस किस रेजुमे में जाके देखेगा किसका किसका जीपीए सबसे ऊपर है। बाय द वे, जीपीए डजंट मैटर, आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल। वो किस किस की रेजुमे खोल के देखेगा, अच्छा इस बंदे ने वो प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो किया हुआ है। Versus, imagine करो someone who had great visibility on their LinkedIn, who used to comment regularly, उनकी प्रोफाइल पे पोस्ट वगैरह काफी थी, ठीक है, फॉलोइंग शोरिंग छोड़ दो,
पोस्टें काफी थी, कमेंट्स काफी थे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे रीच्ड आउट टू शारून ऑन हिज ईमेल। उन्होंने उसको बताया कि आप जिस फील्ड में हायर कर रहे हो ना, मैंने ये मार के मारे हुए हैं उधर, किसके चांसेस ज्यादा होंगे हायर होने के? ऑब्वियसली द वन हु ईमेल्ड। सो दिस इज हाउ यू बीट योर कंपटीशन। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, बट इट्स वेरी हार्ड टू डू। सिंपल इज नॉट इजी, रिमेंबर, सिंपल है काम, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। नॉट इवन आफ्टर दिस सेशन, आई नो नॉट एवरीबडी इज गोना डू इट, बट समवन विल, एंड द वन हु द guy and the girl who will, I can guarantee you they will get more opportunities. And I'm gonna talk about women especially in this domain कि लड़के तो भाई मार्केट में भरे भरे पड़े हैं, ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू talented women in the engineering market. Or if you guys as women can do 80% of the things that I talked about, you will definitely get more opportunities, because there is a scarcity of good female engineers in the market and people want to hire more engineers. ठीक है, कुछ कंपनीज का बाकायदा इंसेंटिव होता है कि they need to hire a specific ratio of male to female engineers. तो जो लड़कियां इस चीज पे फोकस कर लेती हैं, they tend to get hired more. उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं वर्सेस गाइज, बिकॉज गाइज आर एवरीवेयर इन द मार्केट, राइट? बट जो गाइज ऑब्वियसली, द गाइज हु एक्चुअली वर्क ऑन देमसेल्व्स, ऑब्वियसली वो बीट कर देंगे, बट इट्स रिलेटिवली, आप लोगों के पास थोड़ा सा चीट कोड है ये करने का, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स यू गाइज फेस। लेकिन इफ यू डू द थिंग्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आना शुरू कर देंगी। Once you have enough visibility, once you have enough experience, once you have enough expertise, opportunities are gonna come to you. जिस पॉइंट पर मैं हूँ, जिस स्टार्टअप में अभी मैं काम कर रहा हूँ, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर दिस स्टार्टअप, मैंने अप्लाई नहीं किया था इस पे। द अपॉर्चुनिटी केम टू मी। व्हाई डिड इट कम टू मी? I was in a domain, I was in a field where I was talking about the things I built. I was talking about my own thoughts, which mattered to the guys who wanted to hire me, who wanted to hire anyone, and they landed on my profile. उन्होंने मुझे reach out किया. That's how I got in this role. तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं, they matter a lot. People tend to overlook them. But this is how you, जो आपको मैंने पहिए की बात की, वो चलना शुरू हो जाता है। तो that's kind of about it. That's about it. It's that simple. You talk about things, आप अपना पहिया build करो, and you keep doing that things. You keep doing those things when you get a role, और आप उस पहिए को घुमाते रहो, and you rinse and repeat. And जब ये आप इस प्रोसेस में घुस जाओगे ना, आपको बहुत सारी insights आपके हिसाब से मिलना शुरू कर देंगी। The things that I might tell you कि इनके बारे में पोस्ट करो might not apply to you. हो सकता है आपके लिए कोई और चीज बेहतर काम करनी शुरू कर दे, बट प्रिंसिपल्स वही हैं। Principles are going to stay the same. So yeah, that's about it. Q&A कर लेते हैं। Few questions now. Let's take questions one by one. Yes, if anyone has questions, they can put that in the chat and we can. They can actually, ask the Yeah, they question can. by, Yeah, they can do that as well. just make sure to turn on your camera. Otherwise, I'm not going to respond. Yes, questions. Any questions? Anyone? Otherwise, we can conclude the session. Sharoon, yes, you have a question. हेलो Hi, can you see me? जी अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारून है। Walaikum assalam. Sharoon, please turn your camera on. I need to see you before I answer your question. Am I visible right now? Yes, I can see you. थोड़ा Okay, थोड़ा. so But yeah, लाइट please थोड़ी go सी ahead. डार्क है, तो इसलिए It's fine. It's यही fine. वाला It's fine. से ओके। It's fine. सो अब्दुल्ला भाई, मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 8th सेमेस्टर, एंड गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड इन जून। सो जो मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी लिंक्डइन पे विजिबिलिटी और पोस्ट वगैरह की बात की, लेकिन इससे एक स्टेप पीछे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपकी वो लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह पढ़ता रहता हूँ, हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव। बट मैंने 2026 में एक चीज़ सीखी है, और उस चीज़ का सबूत है कि मैंने एक ये बुक बाय की, अगर मैं दिखा सकूँ। Yeah, I can see the book, DDIA, the board book. Yeah. तो अब मैंने एक चीज़ सीख ली कि मैंने कहा कोड तो सारी चीज़ें लिख सकती हैं, हर एक एआई एजेंट कोड आपको लिख के दे रहा है, बट द थिंग इज बीइंग द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, कि आप चीज़ों को सॉल्यूशन किस तरह कर पा रहे हैं। डू यू हैव द रीज़न कि आप
ये बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आप बात करते हैं कि इफ यू यूज द मोंगोडीबी वर्सेस पोस्टग्रेस, सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि आपने मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस क्यों यूज किया, द रीजन बिहाइंड इट। लेकिन So मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये था कि सॉरी, जी बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बस उससे इस चीज़ का सोल्यूशन एक उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में पूछना चाह रहा था कि आई हैव मैनी आइडियाज़ ऑन माई माइंड, बट मैं उसे स्टार्ट करता हूँ, बट वो एक एंड तक मैं पहुँच नहीं पाता। राइट।